شید اقبال چیمہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد. ذرا مہنگائی کی طرف آتے ہیں. NA133 کے کینڈیڈیٹ آپ کو نامزد کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اپنا. تو یہ پرویز ملک صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے تو اعجاز چودھری صاحب کو 12,000 کے مارجن سے شکست دی تھی. اور اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی ہے اوور آل، جس طرح مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس سیٹ پر کوئی ٹف ٹائم آپ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو دے سکیں گے؟ ابھی تک نون لیگ نے اپنے کینڈیڈیٹ کا اعلان تو کیا نہیں ہے. جی، میں سٹنگ منسٹر ہوں. میں ٹف ٹائم دینے نہیں جا رہا، میں جیتنے جا رہا ہوں. یہ تو آپ نے بہت ہی عجیب بات کر لی. میں وزارت چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میں ٹف ٹائم دینے نہیں جا رہا. اس طرح میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں الیکشن جیتنے جا رہا ہوں انشاءاللہ میرا اللہ کرم کرے گا. ہم نے تھوڑا سا، اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ میڈیا والے ناراض ہو جاتے ہیں. ہم اگر اپنی بات کی وضاحت کرتے ہیں تو اس بات سے ناراض ہوتے ہیں کہ حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مہنگائی کی پہلے بات کر لیں. ہم مہنگائی میں دیکھیں، ایک ہے مہنگائی آپ کی لوکل اور ایک ہے امپورٹڈ. ہمارے ہاں اس وقت آپ کو کہہ کہ آپ امپورٹڈ مہنگائی آپ کو نظر آتی ہے، لوکل مہنگائی نہیں ہوئی. جو چیزیں بھی ہم لوکل پروڈیوس کرتے ہیں ان میں مہنگائی نہیں ہوئی. جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے تھے وہ چونکہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے. اس وقت میں چونکہ NPMC آپ کہہ لیں کہ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کا ممبر ہوں شوکت ترین صاحب کے ساتھ، تو 3 یا 4 ممبر اس میں، تو اس میں جائزہ لیتے رہتے ہیں. ہم 51 آئٹم کا جائزہ لیتے ہیں جی ویکلی. تو اس میں جو چیز مطلب میں دیکھ رہا تھا کہ اپریل یا مارچ 2020 اور مارچ 2000 ابھی یو کین سے اکتوبر 2021، اس میں جو میں مطلب 1.25 سال بنتا ہے یا 1.5 سال بنتا ہے، 1.5 سال بنتا ہے. اس 1.5 سال میں سوائے رائس کے باقی تمام چیزوں کی قیمتیں آلموسٹ ڈبل ہوئی ہیں. کچھ چیزوں کی قیمت 2.5 گنا ہو گئی. گیس کی قیمت تقریباً 4 گنا ہو ہے. اس وقت کوئی آلموسٹ $6 کی مل رہی ہے، یہ کوئی $1.7 کی ملتی تھی. اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ تقریباً آلموسٹ قیمتیں جو ہے یو کین سے ڈبل ہوئی ہیں. اس میں آپ گیس کی بات کر لیں، تیل کی بات کر لیں، کوئلے کی بات کر لیں. کوئلہ 250 گنا مہنگا ہوا، 250% مہنگا ہوا. لیکن چیمہ صاحب چلیں، جو چیزیں باہر سے منگا رہے ہیں ان کی قیمتیں ڈبل ہوئی ہیں تو اس کا اثر پڑ رہا ہے. لیکن جب ہم زرعی ملک ہیں تو ہم پھر یہ دالیں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے کیوں امپورٹ کر رہے ہیں؟ پھر ہم چینی اور آٹے کو مکمل طور پر اپنے ملک میں کیوں نہیں اگا پا رہے؟ ہم خود کفیل کیوں نہیں ان چیزوں میں ہو پا رہے جب ہم زرعی ملک ہیں؟ نہیں، آپ کو کسی نے غلط بتایا کہ ہم خود کفیل نہیں ہیں. یہ دیکھیں، ہم نے 2 ملین ٹن گندم منگوائی ہے. ہمارے پاس اپنی گندم تھی 28.2 اور 2 ملین گندم منگوائی ہے. اور یہ 2 ملین گندم وہ ہے جو بورس واٹر کی وجہ سے یا گورنمنٹ نے دینی ہے افغانستان میں، اور اس کے آپ نے ڈالر لینے ہیں. اپنے لیے ہمارے گندم ہم نے خود اگائی ہے. ہمیں 2 ملین ٹن گندم منگوا کے ایک دانے کی بھی فردر ضرورت نہیں ہے. اور یہ 2 ملین ٹن موسٹلی گندم جو ہے 99% یا 100% یہ افغانستان جائے گی. ہمیں جب بھی ان کو ضرورت پڑے گی، ہمارے پاس اس وقت اگر ہم افغانستان میں گندم نہیں بھیجتے تو 40,000 ٹن ہم ریلیز کرتے ہیں. 40,000 ٹن کے حساب سے ہمارے پاس اس وقت گندم جو ہے 8.5 مہینے کی موجود ہے. سو ہمارے پاس تو گندم ایکسیس ہے اور ہم رکھ لیں. چلیں ایکسیس ہے تو پھر مہنگی کیوں ہے یہ نہیں سمجھ آ رہا. چیمہ صاحب میں ذرا واپس آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا مندو خیل صاحب، چونکہ ان کی جماعت یہ الزام لگاتی ہے اور پوری اپوزیشن کے اس وقت مہنگائی کی ذمہ دار یہی حکومت ہے اور اس کی مس مینجمنٹ ہے. مندو خیل صاحب، چیمہ صاحب بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے، ظاہر ہے ہمیں بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہے. حکومت کا تو کوئی قصور نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کون سے خوابوں میں رہتے ہیں PTI کی جو لوگ ہیں. کل ہی گورنر سندھ کا بیان ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، پاکستان میں ہم نے مہنگائی پر قابو پانا ہے. تو یہ قابو پانا ہے جو کچھ چیمہ صاحب اپنی بتا رہے ہیں. چیمہ صاحب آ رہا ہوں میں آپ کی طرف. ذرا مندو خیل صاحب بات پوری کر لیں. چیمہ صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. جی مندو خیل صاحب. 250% مہنگے ہوئے ہیں. پھر چیمہ صاحب نے ایک اور بات کی ہے کہ چونکہ جو امپورٹڈ چیزیں ہیں وہ مہنگی ہوئی ہے، اور پھر خود اپنی باتوں میں بتا رہے ہیں کہ وہ گندم جو ہمارے پاس ایکسس ہے. تو بھائی اگر گندم میں ایکسس ہے تو 80 روپے آٹا کلو کیوں مل رہا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. چینی، بہت ساری چینی کمیشن بھی بنا، چینی یہ وہ سارا. آخری دنوں میں نواز شریف صاحب کے دور میں 50-55 روپے آج 120 روپے میں کیوں مل رہا ہے؟ اس کے جواب ہے کسی کے پاس. اس کے علاوہ لاتعداد چیزیں دوسری ہے. اور میں چیمہ صاحب کی بات پہ یقین کروں جو خود فرما رہا ہے کہ 200-250% مہنگی ہوئی ہے، یا میں گورنر سندھ کی بات پہ یقین کروں جو اس نے کام نے مہنگائی پہ قابو پا لیا ہے. یقیناً گورنر سندھ جو ہے نا وہ غلط بات کر رہا ہے.
जब प्राइम मिनिस्टर साहब वो तस्दीक कर रहे हैं, तमाम वज़रा कर रहे हैं, ठीक है, चीमा साहब की बात को मैं इस बात पे अप्रिशिएट भी करता हूँ कि कम से कम मान तो रहे हैं कि महंगाई हुई है। अब गवर्नर सिंह को मैं क्या कहूँ, कह रहे नहीं है महंगाई पे हमने काबू पा लिया है। देखिए बात एक चीज नहीं है, एक सिलसिला नहीं है, और ये महंगाई के पहले ये हिसाब लगाते थे, और कि भाई हमारे पास, जब आपको याद होगा जब 126 दिन के जो इन्हें धरना, गवर्नर सिंह ये कह रहे हैं कि महंगाई पे काबू पा लिया। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां हम दे चुके हैं, 1 करोड़ तो बहुत पीछे रह गई। तो आप जिस सूबे में, जिस शहर में जाएं, एक अलग बात हमें नजर आती है। देखिए, मैं अगर आप एक एक चीज पे बात करूं तो आपके लिए 4 घंटे का प्रोग्राम भी कम पड़ेगा। आपको याद होगा इमरान नियाजी साहब फरमाते थे कि मुल्क में जो है ना वो 2 करोड़ 1.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और अभी पिछले महीने एक स्कूल के प्रोग्राम से मैं उसका लाइव प्रोग्राम देख रहा था, तो फरमा रहे थे 3 साल बाद के 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 3 साल बाद वो खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। फवाद चौधरी को क्या बात करनी है? फवाद चौधरी तो कल किसी और की तर्जुमानी करेगा, पता नहीं वहां उसने क्या बात करना था। उन चीजों को भी छोड़िए, आप मुझे एक चीज का बता दें, आप मुझे मुल्क में खारजा पॉलिसी बता दें। चलो महंगाई का तो ये मान रहे, इस पे मजीद बहस करने की जरूरत नहीं है। सब चीज आवाम के सामने, जो लोग राशन की दुकान पे खड़े होते हैं या जो खवातीन घर का ये साल मान रहे, ये तो तशवीशनाक बात है कि अगर इस चीज का इदराक है तो फिर उस पर काबू क्यों नहीं पा रहे। मैं जरा वापस आपकी तरफ आता हूँ। चीमा साहब से इस सवाल का जवाब जानते हैं। चीमा साहब, जब आप खुद कफील हैं आटे में भी, चीनी में भी, तो फिर 120 रुपए चीनी, 80 रुपए आटा क्यों नहीं मिल रहा? आपको याद होगा 22-23 सितंबर को आप ही ने ऐलान किया था शौकत तरीन साहब के साथ कि 5 तारीख से आपको 55 रुपए किलो आटा मिलेगा और चीनी की कीमत भी 90 रुपए हो जाएगी। वो आज तक हमें मार्केट्स में तो नजर नहीं आ रहा है ऐसा। अच्छा, आप इस वक्त कराची बैठे हैं? जी, मैं कराची में बैठा हूँ। 80 रुपए किलो चक्की का आटा है यहाँ पे और 110 रुपए किलो चीनी है। आप कराची में बैठे हैं? अच्छा, सुनना। अच्छा, मंदोहेल साहब पीपल पार्टी से हैं? ये कराची, जी पीपल्स पार्टी से हैं, कराची से। फैसल वाडा साहब को इन्होंने शिकस्त दी थी अभी NA 249 से। जी, अच्छा, जी मैं समझ गया। जी मैं समझ गया। मंदोहेल साहब, देखें, गुजारिश है यहाँ पे कि ये जो 80 रुपये आटा जिसकी बात कर रहे हैं, ये कराची में है। पंजाब में आटा 55 रुपये किलो है। पंजाब में, दोबारा सुन लें मंदोहेल साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? पंजाब में आटा 55 किलो है, और आप इतने लायक हैं, आप इतने काबिल लोग हैं, आपका इतना तजर्बा है, आप इतने महान हैं, आप अपने 5.5 करोड़ लोगों को आटा 80 रुपये बेच रहे हैं। भाई, आपको तो इस बात पे काफ़ी शर्मिंदा होना चाहिए। आप इतने फहर से आप आगे टीवी पे बैठ के महंगाई की बात कर रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं। आपको किसी ने बताया कि चीनी पंजाब में क्या किलो है? आपको किसी ने बताया? महकमा ज़राअत आपके पास है, आपको किसी ने बताया? चीनी पंजाब में, जी आप कह लें कि चीनी बिक रही है कोई 106 रुपए किलो है। पंजाब में चीनी 106 रुपए किलो है। 90 रुपए 106 रुपए किलो है जी, 106 रुपए किलो। वजीर खजाना साहब ने और आपने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 22 सितंबर को, उसमें बताया गया था 90 रुपए 5 अक्टूबर से 90 रुपए। सुन लेना सर, सुन ले जी। यार बात करने देना, ताने ना देना, बात करने, प्लीज बात करने। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ कि 90 रुपये का हमने चीनी का कहा था। चीनी इस वक्त 90 रुपये मिल रही है। इस वक्त आपको 3 जगह चीनी 90 रुपये मिल रही है। एक मिल रही है आपको यूटिलिटी स्टोर पे, एक मिल रही है सहूलत बाज़ार पे, और 1500 आप कह लें कि जो डीलर हैं इसके शुगर एसोसिएशन के 1500 डीलर्स को हम चीनी दे रहे हैं। वो 90 रुपये किलो बेच रहे हैं, और सहूलत बाज़ार भी इतना 90 रुपये बेच रहे हैं, और यूटिलिटी स्टोर 90 रुपये बेच रहे हैं। हमारी एफर्ट है कि हम दिनों में ये चीनी जो है 90 रुपये तकरीबन सारे पंजाब में ले आएंगे इंशाल्लाह, और KP में ले आएंगे। उसके बाद नवंबर में हम चीनी 80 रुपये किलो करने जा रहे हैं जी। नवंबर में हम चीनी 80 रुपये किलो करने जा रहे हैं, 90 नहीं रहेगी, ये नीचे जाएगी, ठीक है। और हाँ, इसमें एक गुजारिश है कि सिंध में सारी मिलें जरदारी साहब की हैं और अवाम भी इनके हैं, तो इन्होंने वोट दिए हुए हैं। बड़ी गुर्बत है उनको, वो गरीब हैं और उनको बड़ा तरस आता है। तो जरदारी साहब कहे थोड़ा सा अगर हम चीनी बाहर से मंगवा के दे सकते हैं 90 रुपये, तो इनके पास तो अपनी पड़ी है, तो थोड़ा सा कर दे सस्ता। ये इनको पड़ी है चीनी 65 रुपये की पड़ी है। 65 रुपये वाली चीनी 90 रुपये में देते हैं। लोगों पर रहम करें थोड़ा सा। देखें, क्वेश्चन ये है कि जो मेरी जिम्मेदारी है मैंने करनी है, जो पीपल्स पार्टी मंदोहेल साहब की जिम्मेदारी है उन्होंने करनी है। आटा बार मैं इनसे सारे अवाम के जमशेद साहब, जरा मंदोखेल साहब फिर अपनी क्यों जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे, उनकी जमात क्यों नहीं कर पा रही, जरा इनसे पूछते हैं। मंदोखेल साहब, ये पंजाब में आटा 55 रुपए मिल रहा है, सिंध में हम क्यों 80 रुपए खरीद रहे हैं? कराची में, पंजाब में चीनी 90 रुपए मिल रही है, चले 3 मकामात पर ही मिल रही है, तो यूटिलिटी स्टोर सहूलत बाजारों में हम यहाँ 115 रुपए क्यों खरीद रहे हैं? मंदोखेल साहब, पंजाब, हाँ, 3
पहली बात तो ये कि जो चीनी का जो यूटिलिटी स्टोर पे बेच रहे, तो थोड़ा सी चीमा साहब ये भी बता दें कि सब्सिडी कितने दे रहे हैं चीनी कीमत में यूटिलिटी। पहले आटे की बात कर लें, पहले आटे की बात आटे की बात क्लियर कर लें, फिर वो चीनी की सब्सिडी बताते हैं चीमा साहब। आटे की बात कर लेना जरा। आटा 55 80 25 रुपए का फर्क क्यों है? चीमा साहब आप अपनी बारी पे बोलें, मुझे जब आपने सवाल किया तो मुझे बोलने थे और मैं अपनी मर्जी से बात करूंगा, आपकी हिदायत पे नहीं चलूंगा। दूसरी बात ये जी मधु खेल साहब कर लेना बात ऐसे दोनों की चले, दोनों की आटे और चीनी दोनों की बात साथ साथ कर लें। मधु खेल साहब बात मुकम्मल कर लें, वक्त कम है। इनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। जब कंटेनर पे चढ़े और ये बुरा बोला कहते थे मुस्लिम लीग नून को, बड़ा बेशर्म आदमी यार तू, पार्टी कितना बेशर्म आदमी तू। शर्म वाली कौन सी बात है इसमें? मैं आटे का रेट पूछ रहा हूँ, शर्म की बात कर रहे हो? ये कौन सी बात है? तरीका कौन सा बात का? आप बात करो, आटा महंगा दे रहे हो, शर्म आपको आनी चाहिए, मुझे आनी चाहिए। इतना बेशर्म आदमी आटे की बात कर रहे हो, आप शर्म की बात कर रहे हो? जी जवाब जरा गालियां देने के मंदू खेल साहब, आटे की कीमत में फर्क क्यों है बता दें जरा। इंसानों की बात करेंगे, ये क्या तरीका है बात करने का? शर्म नहीं आती? चले जमशेद साहब जरा ये बताए ना। जी आटे की कीमत से मुतालिक बात हो रही है मंदू खेल साहब, एक एक करके बात करें तो मैं थोड़ी टोक रहा हूँ आपको, आप दोनों एक दूसरे को टोक रहे हैं। देखिए दूसरी बात ये, जब कंटेनर पे चढ़ के 124 दिन के धरने में आप ये करें कि लूट के ले गए पीपल्स पार्टी नून लीग, और नून लीग के दौर में ये चीनी 50-55 रुपए मिली थी, आज आप वही 96 या 90 रुपए करें, कोई बात नहीं है, शर्म की बात ही नहीं है। मैं आपको ये नहीं दोहरा रहा हूँ, ठीक, नंबर एक बात सही। दूसरी बात, जिस चीनी का बात करें यूटिलिटी स्टोर का, वहां आप सब्सिडी दे रहे हो, और सब्सिडी देने के बाद लाइन पे जो लोग लगे हुए हैं वहां कितने किलो एक आदमी को मिल रहा है वो भी जरा बता दे, वो भी लाइन हमने देखे। उसके बाद आप सोलर बाजार आपके पाकिस्तान में कितने लगे हैं वो भी जरा बता दी, जिसमें आप सब्सिडी दे रहे हो। सही, आम लोग हर जगह पहुंच नहीं सकते, नंबर एक। ठीक है, चले आटे पे आ जाए। अब उसके बाद आप आइए आटे के ऊपर। मुख्तसर आप आटे के ऊपर, जब आपका मरकजी सतह पे आपके पास आटा नहीं था, आपने अफगानिस्तान आटा बेच दिया, ठीक है, आपने अफगानिस्तान आटा बेच दिया, आपने किल्लत वहां पैदा कर दिया। उसके बाद आपकी पंजाब हुकूमत आज भी आटा जो है ना वो गंदम जो है ना वो रिलीज नहीं कर रहा है, ये भी आप आवाम को सच बता दे सारी बात, ठीक है। और फिर उसके बाद आप आइए पेट्रोल के ऊपर, जब आपका पेट्रोल महंगा होगा तो आपका हर चीज पे फर्क पड़ेगा, किराया हर चीज पे फर्क पड़ेगा, वहां आप कोई बात नहीं, मैं शर्म की बात नहीं दे रहा हूं आपको। उसके बाद आप आइए, आपने ये कहा था कि हमारे पास 200 माशी टीम है जिसका सरगना होगा अरस्तु साहब, ठीक है। ठीक है मंदू खेल साहब, ये बातें तो हम इनको याद दिलाते रहते हैं जो माजी में इनके बयानात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर मंदू खेल साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।